हेलो गाइस। हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। एंड आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। और गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 जो है हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक इंग्लिश कुमार भारती, उसका यूनिट 1 का 1.1 पोयम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ओके गाइस, सो ये पोयम जो है वो एक प्रेयर है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी, एक वन ऑफ द फेमस इंडियन पोएट of India. He has written this poem where the mind is without fear. Actually, guys, this is the poem to the God. Means Rabindranath Tagore is praying the God for his beautiful and ideal country, how his country should look like. Okay, so we will see the line by line and in simple explanation in Hindi and English of this poem. And guys, here it is given the introduction of the poet Rabindranath Tagore ji, and this is very necessary to read. Why? Because when we write the appreciation, we always have to write what is the central theme of the poem and what are the who has written it. So, guys, here always in this introduction passage of the poet, last four lines here given are the central theme of the poem. So if we try to write the central theme of the poem, we can write as Tagore lived during the time when India was ruled by the British. In this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. This is actually the central theme of the poem, and the poem is written by Rabindranath Tagore, who was the author of Gitanjali, and its profoundly sensitive, fresh, and beautiful verse. He became the first non European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. Actually, students, if we see the birth date and the death date of Rabindranath Tagore ji, he was born in 1861 and he died in 1941. Actually, before the time of independence, when the rule of British was there in India. Actually, when Rabindranath Tagore ji was alive, तब इंडिया में जो था वो ब्रिटिशर्स का रूल था। तो तब सारा एजुकेशन और सारे जो अवार्ड्स है वो सब यूरोपियंस को ही दिए जाते थे। इंडियंस को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था हर फील्ड में, जैसे एजुकेशन फील्ड में, कॉर्पोरेट, एनी सेक्टर और एनीथिंग इन जॉब अपॉर्चुनिटीज एनीथिंग। इंडियंस को जो है वो एकदम कम समझा जाता था, उनको कोई वैल्यू नहीं देता था। तो उस टाइम पे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो हमारे फर्स्ट एक इंडियन थे जिनको 1913 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। So the poem is written in Bengali, but it was translated into English by himself. And this poem is taken from the very famous book for which Rabindranath Tagore ji has received the Nobel Prize, and the book name is Gitanjali. You all will know that. So let's start the poem. The poem is written in very easy language, students, so you can also understand it very easily. And I will try to explain it in very simple English language so that you can write any personal response or appreciation by your own. So the poem tells us where the mind is without fear and the head is held high. From this line, the poet, that is Rabindranath Tagore, dreams for a country where people live without fear and can hold their head high with self-respect and confidence. Means from this line we come to understand that there was a time when the Britishers ruled India, the Indians were not given so much respect. Means Rabindranath Tagore ji had to express from this line that एक ऐसी कंट्री होना चाहिए जहाँ पे लोगों के मन में जो है वो डर ना हो, और लोगों का जो सर है वो हमेशा ऊंचा रहे, खुद में हर एक के पास एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो और लोग उनसे डरे नहीं, क्योंकि तब जो था वो बहुत डर का माहौल था, क्योंकि सारे इंडियंस पे ब्रिटिशर्स का ही रूल था और वो अपनी ही जो रूल्स रेगुलेशंस है वो चलाते थे। सेकेंड लाइन, रविंद्रनाथ टैगोर जी prays to God that
where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments, where knowledge is free से रविंद्रनाथ टैगोर जी गॉड से प्रे करते हैं कि एक ऐसी कंट्री होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हर किसी के लिए एजुकेशन जो है वो फ्री हो, हर कोई एक नॉलेज ले सके एंड और जो लर्निंग है वो एक लिमिटेड नहीं हो या फिर कंट्रोल नहीं हो, हर कोई सीख सके, हर कोई पढ़ सके, हर किसी के पास नॉलेज हो, हर किसी को लिखना पढ़ना आना चाहिए। ऐसी एक कंट्री के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रे करते हैं गॉड से, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। यहाँ पे गाइस जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसका हमें नीचे मीनिंग भी दिया गया है, तो वो हम लोग देखते हैं। डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड कलर इन सोसाइटीज एंड बिटवीन द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, ये है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मीनिंग। मतलब एट द टाइम व्हेन देयर वाज नॉट द इंडिपेंडेंट इंडिया, तब जो था वो हर एक कंट्रीज में जो है या फिर वर्ल्ड में जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था वो रिलीजन के बेस पे, कास्ट के, कलर के बेस पे जो था वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी गॉड से प्रे करते हैं कि पीपल जो है वो कास्ट के, रिलीजन के, क्लास के, रीजन के या फिर कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। एक ऐसी जो थोड़ी कम सोच है या फिर जो बेकार सोच है, नैरो थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, वो लोगों में ना हो, वो लोगों से दूर हो जाए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, गॉड से प्रे करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी कि उनका जो एक आइडियल नेशन है उसमें पीपल जो है वो ट्रूथफुली और एक ऑनेस्टी के साथ बोले और उनमें सेल्फिशनेस ना हो और किसी का भी झूठा उद्देश्य या फिर एक सेल्फिशनेस लोगों में खत्म हो जाए। एक ऐसी कंट्री के लिए वो विश करते हैं गॉड से। Where tireless striving stretches its arm toward perfection. What is meant by tireless striving stretches its arms? Continuous effort and struggle. People should work hard, continuously, sincerely, to improve themselves and contribute something to the country so that they themselves and the country will go towards the perfection. मतलब गॉड से रविंद्रनाथ टैगोर जी ऐसा प्रे करते हैं कि हमारी कंट्री में लोग खुद मेहनत करना सीखे, लोग किसी की गुलामी से डरे नहीं, ऐसा, और लोग सिंसियर रहे खुद के लिए, खुद के सोसाइटी के लिए। अगर वो खुद के सोसाइटी का, खुद के घर का भी विकास करते हैं तो धीरे धीरे करके नेशन का भी विकास अवश्य होगा। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert's hand of dead habit, old traditional rituals and customs that are harmful। मतलब जो एक रिचुअल्स है जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं, वही जो यंग यूथ है वो लेकर ना चले। यंग यूथ में थोड़ा-सा जो सोचने की एबिलिटी है वो थोड़ा एक क्लियर होना चाहिए और जो रिचुअल्स लोग फॉलो करते आ रहे हैं सच में उसके पीछे कोई रीज़न है या फिर वो वैल्यूएबल है, ये लोग जान सकें। अगर वो वैल्यूएबल है या फिर उसका कुछ मीनिंग निकलता है तो ही वो रिचुअल लोग आगे फॉलो करें। जो डेड हैबिट्स है, मतलब जो ओल्ड रिचुअल्स है जो अच्छे नहीं है या फिर उसका बैड इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी पे एंड ओवरऑल नेशन पे, तो वो यूथ जो है वो फॉलो ना करें और जिसका कोई सेंस नहीं बनता ऐसी चीज़ें भी लोग उसके तरफ ना जाएं। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into the heaven of freedom, my father, let my country awake। So यहाँ पे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी वो बोलते हैं कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, ओके, he prays that God guides the minds of people to grow in thought, creativity and action। मतलब लोगों के जो माइंड्स है वो कुछ थॉट्स, नए नए थॉट्स लोगों में आए, वो उसे सोसाइटी में अप्लाई करे, उनके रिलीजन्स में, उनके जो आसपास की सराउंडिंग्स है उसको सुधारने का प्रयास करे, ताकि पूरा जो नेशन है, हमारा देश है या फिर हमारा वर्ल्ड है, उसमें जो ये डेड हैबिट्स है वो ना रहें। एक एवर वाइडनिंग थॉट होना चाहिए, मतलब एक ब्रॉडनिंग थॉट जो है वो लोगों में आना चाहिए
so that the in last line into that heaven of freedom my father let my country awake। ये लाइन से रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या बोलते हैं, वो माय फादर मतलब गॉड को जो है वो प्रे करते हैं। हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स while रिस्पेक्टिंग दोज ऑफ अदर्स। एक ऐसा स्वर्ग हो, एक ऐसे स्वर्ग जैसी जगह हो, एक हेवन हो जिसमें लोगों में अच्छे विचार, अच्छे शब्द बोले लोग, अच्छा एक फ्रीडम हो, अच्छे कर्म करें और दूसरों की रिस्पेक्ट करे, ऐसी एक कंट्री हो और ऐसा एक सवेरा हो जब एक ऐसे सारे लोगों के विचार होंगे, ऐसा एक सवेरा मेरे कंट्री का होना चाहिए। तो बेसिकली गाइज इसमें सारे लाइंस में एक अच्छे नेशन के लिए, एक अच्छे वर्ल्ड के लिए गॉड से प्रे करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ओके, सो हमें इससे क्या एक मैसेज मिला ये पोएम से, तो एक इसका मैसेज ऐसा था कि द पोएट ड्रीम्स फॉर अ कंट्री where the peoples are fearless and respectful, where people should speak truth and people are hardworking, people should be educated and open-minded, should not follow the dead habits, and people should be free from discrimination. What's discrimination? Discrimination on the basis of narrow domestic walls means division on the basis of all that caste, class, region, religion, color between societies and countries. Okay, so this was our poem, and I have also told you the moral and the message of the poem. We have already explained this poem, and I have given you the explanation of the poem in very easy and simple language, and also told you the message. In next video, we will try to cover English workshop from question number 1, 2, 3, A and B, question number 4, question number 5A, 5B, 6, 7 and 8 appreciation we will write in our own words. We will try to write it ऑन द बेसिस ऑफ आर एक्सप्लेनेशन। हमने जो एक्सप्लेन किया है उसके बेसिस पे हम लोग एप्रिसिएशन लिखने का ट्राई करेंगे, ताकि आप भी कभी मतलब आप रट के भी जाओगे तो आपको एप्रिसिएशन नहीं आने वाला। आप साल भर भी रटोगे तो भी एप्रिसिएशन लर्न नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक जाएगी, क्योंकि एक ही पोएम नहीं है, बहुत सारे पोएम्स हैं। सो थैंक यू गाइस तब तक के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इंग्लिश वर्कशॉप के साथ 1.1 का। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।